guys and welcome back to another interesting YouTube video. As always guys, I hope आप सब एकदम बढ़िया कर रहे हो and as always I'm so grateful for all the love that you guys have been giving the channel so generously. Please keep on doing this, it truly means the world to me. आज का वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल क्योंकि guys I can absolutely not believe that the year 2025 has almost come to an end. I would say that the year मतलब ये जो साल था इसकी एनर्जी was one of extreme restlessness. ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हलचल चलती ही रही. It felt like your brain or your mind never had a moment of just like switching itself and just relaxing. ऐसा लग रहा था इस साल में ना हमेशा एक अनसर्टनिटी, एक अजीब सा डर, एक अजीब सी हैवीनेस थी. Now there could be any number of reasons for that और काफी सारे रीजन मतलब I would say rather logical explanations दिए भी गए हैं कि ऐसा क्यों था ये साल. पर चलो for a lot of reasons I'm glad that this year is about to get over, it's about to come to an end because trust me, although there were a lot of moments of personal victories for me this year, I just felt that this year in general felt very heavy. And अब न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू रेजोल्यूशंस की बारी आ चुकी है. बट गाइज आई थिंक हमेशा जब नया साल आता है ना वी ऑल टॉक सो मच अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू ब्रिंग टू दिस न्यू ईयर. हम नए गोल सेट करते हैं, नई रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए थॉट प्रोसेसेस में चले जाते हैं. But we hardly ever talk about what is that thing or what are all those things that you want to leave behind. अगर आपको grow होना है, if you want to become a new person in your life, you want to do new things, you want to achieve greater things in life, then growth is not always about adding new things to that list. You need to also let go of certain things, certain ideas because growth is all about changes. और जब तक आप वो unnecessary baggage या burden पीछे रहकर भूल नहीं जाओगे तब तक आगे बढ़ भी नहीं पाओगे ना सही से. तो अगर आप इस चीज के साथ, इस थॉट के साथ एक मेंटली इमोशनल लेवल पे रिलेट कर पा रहे हो ना गाइस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द थिंग्स यू नीड टू लीव बिहाइंड इन 2025. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. The number one thing guys that you need to leave behind in 2025 is that please stop caring about other people's expectations. The thing is guys that ठीक है कुछ वो लोग होते हैं जिनसे हम expectations रखते हैं और वो हमसे रखे तो justified होता है. But you don't need to carry the burden and expectations of everyone and anyone in your life because trust me guys, आप कितना भी कर लो, कितना कुछ भी किसी के लिए कर लो ना, लोग तो आपसे कभी खुश होंगे ही नहीं. तो इस साल ना, इस आने वाले साल में वो सब करो that actually truly gives you happiness and peace. Don't just be in a career because everyone around you has told you this is the correct choice. Don't try to be in a relationship because everyone has said अरे यार compromise तो करना ही पड़ेगा. Don't just try to fit in क्योंकि किसी और को आपसे expectation है. Do things that truly bring you happiness, comfort and peace. Because guys, it's about you. You have to live your life for your own self. और ये जो unnecessary expectations होती है ना लोगों की guys, ये ऐसी नहीं होती कि आपने उनके लिए एक चीज कर दी तो fulfill हो जाएगी या दो चीजें कर दी तो हो गया. नहीं, ये तो ऐसे लोग होते हैं गाइस कि आप उनके लिए जितना करो ना वो आपसे उतना ही और मांगने लग जाते हैं. सो दिस इज नॉट द एनर्जी यू शुड बी टेकिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. मत करो ट्राई टू फिट इन, मत करो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज, मत करो अपनी हैप्पीनेस के साथ इतना नेगोशिएशन कि यू डोंट एंड अप बीइंग अ हैप्पी पर्सन. डोंट बी सैड, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड. मेक योर ओन डिसीजंस, मेक योर ओन चॉइसेस एंड डोंट लेट द वेट ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग यू डाउन. वो करो जो आपको ट्रूली हैप्पीनेस देता है क्योंकि आप कितना भी कर लो वो लोग तो आपसे कभी खुश वैसे ही नहीं होंगे ना. Next thing guys, and oh my god, I cannot tell you how important I think this is for all of you to realize, is that leave the thought process of that productivity is the only thing that is worth living for. ये एक बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है जो आजकल मैं देख रही हूँ हर किसी का हो चुका है जिसमें उनको लगता है ओनली इफ वी हैड अ प्रोडक्टिव डे, अगर हमने कुछ अपने करियर के लिए किया है, कुछ ग्रोथ के लिए किया है तो ही वो दिन बढ़िया है. एंड पीपल जस्ट हेट द आइडिया ऑफ हैविंग फन और इवन रेस्टिंग और रिलैक्सिंग फॉर दैट मैटर. प्लीज लीव दिस थॉट प्रोसेस बिहाइंड गाइस क्योंकि सक्सेसफुल होने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन काम ही करते रहो. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, इफ यू ट्रूली आर अ सक्सेसफुल पर्सन तो यू विल हार्डली वर्क बिकॉज यू ऑलरेडी बिल्ड दैट लाइफ फॉर योरसेल्फ. डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही अपने करियर पे काम मत करो. इनफैक्ट आई एम समवन हु इज always like motivating and always talking about how important it is to build your career. And in fact I am someone as well जो बहुत काम करती हूँ मैं अपने career build करने में. But I also have fun, I also enjoy and relax in my life and you guys need to do that too. Don't make relaxing or resting a very big thing in context of कि oh it's so negative, it is so guilty to rest or take a break. No, why is it guilty? जिस जिंदगी में काम करते हो वैसे जिंदगी में relax और enjoy करने की भी तो जरूरत है ना. And guys trust me when I say it, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लाइफ के इसी पॉइंट
पॉइंट पे कर सकते हो। एक टाइम आएगा लाइफ में जब पैसा तो बहुत सारा होगा पर उस चीजों को करने की ना उतनी विल नहीं होगी, या फिर लाइफ में प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। और पता है तब आपके मन में क्या थॉट आया था, या आएगा रादर, कि यार तब कर लेना चाहिए था, बस पैसे क्यों लिए नहीं किया। एंड टाइम ना, द टाइम दैट यू लूज इट्स नेवर गोना कम बैक। सो just make mindful decisions but also enjoy your life, because the one thing that this past year has taught us is that life is very uncertain. Don't delay happiness. जब जहाँ खुशी मिलती है ना उसको जी लो, उसको enjoy कर लो। The third thing, guys, that you need to do is that stop reliving your past. बार बार पुरानी चीजें, heartbreaks, problems, issues, friendships, betrayals, manipulation की बात मत करो guys. I know आप में से काफी लोगों को लगेगा यार एक नोट पर वेंट करने से बेटर फील होता है. I get it guys, पर कितना वेंट करना है? I'm not taking away your pain or any emotion or feeling away from you, but what I'm trying to tell you is that बार बार पुरानी ही बातें करते रहोगे तो उन्हीं बातों में, उन्हीं situations और उन्हीं लोगों में दब के फंस के रह जाओगे. The more you talk about your past, the more pain you're bringing back to yourself, guys, by talking about those memories, those things, those people, and those moments. And you know, guys, one thing you need to realize is that none of us have the power to go back into our past and change it. हम तो वो कर ही नहीं सकते. The only thing we can look forward to, the only thing we have in our control right now is our future. So instead of focusing on what went wrong or what you could have done better, अपनी एनर्जी इस पे लगाओ ना कि अपना फ्यूचर कैसे बढ़िया कर सकते हो. How can you attract better people, better opportunities, better things, better events, better everything? Because the more you stay in the past, guys, the more it will consume you. And अभी तो पूरी लाइफ बाकी है ना, अपना फ्यूचर बनाओ. और पता है एक और बात बताऊं गाइस, अगर पास्ट की बातें करते रहोगे ना फिर उसी पैटर्न में दब जाओगे, फिर वही प्रॉब्लम्स करोगे फेस, फिर वही लोगों को फेस करोगे, फिर उन्हीं चैलेंजेस में जाओगे क्योंकि वही एनर्जी तो अट्रैक्ट कर रहे हो ना. तो 2025 के साथ अपने पास्ट की मेमोरीज को भी टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि आपको क्या पता है 2026 आपकी लाइफ का सबसे स्पेशल और हैप्पी ईयर बन जाए. The next thing, guys, you need to stop doing this year is that stop having those immense feelings of self-doubt. मुझसे नहीं हो पाएगा. I can't do it. I will fail यार. I don't think I'm ready for this. Guys, बस करो यार. क्यों अपने आप को इतना नीचे गिरा रहे हो? Trust me, if nothing else, this year has shown you that you can actually come out of things that would make you earlier feel that, oh यार मैं ये चीज survive नहीं कर सकता. पर इस साल तो आपने realize कर लिया कि you can survive all that and you can grow so much. अपने अंदर वो सेल्फ डाउट की वॉइस को बाय बाय कर दो, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया है ना आपको क्वेश्चन करके गूगल या डाउट में डालने के लिए. आप अपने साथ वो क्यों कर रहे हो? डोंट लेट एनी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डाउट अबाउट योर सेल्फ क्लाउड योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज गाइस ट्रस्ट मी, यू हैव अचीव्ड सो मच. और इतना आगे, बस इतना आगे आने के लिए थोड़ी आए हो. इधर तक आगे हो इसका मतलब आगे भी तो जा ही सकते हो ना. और गाइज ट्रस्ट मी, एक चीज है ना, पीस बना लो, लाइक मेक योर पीस विद द फैक्ट दैट यू कैन नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, यू कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग, एंड यू विल नॉट ऑलवेज like win everything. You will have moments of failure, you will have moments where you feel like oh मैं ये challenge के साथ deal नहीं कर पा रहा, of difficulty, and that's completely okay. ये कोई movie नहीं है जिसका end एकदम perfect होगा. ये life है, इसका भी end बढ़िया ही होगा, but with challenges, with problems, because that's what makes us who we are. Trust me guys, if you don't go through these challenges, difficult phases in your life, you will not become the person you are meant to be. And these things, they make us stronger, they make us think different things, they make us a better person, because we start thinking different things. क्योंकि एक बार हमें एक चीज प्यारी लगती है, हम उसमें रुक के रह जाते हैं, उसमें दब के रह जाते हैं, and that's when we become comfortable. And the thing about comfort is, guys, that it will never help you in your growth. तो मैं ये नहीं कह रही कि constantly खलबली मचाते रहो लाइफ में या ड्रामा ट्रैक्ट करो, नहीं. But be open to new challenges, to new people and new adventures, because that's what's going to actually truly help you build yourself up. And the next thing, guys, is that stop chasing people who don't chase you. I mean, why are you even doing this to yourself, guys? Why are you running around, running after those people who probably don't even value you as much? इस साल का मोटो ना बस इतना रखो that call those who call you, text those who text you, care about those who care about you. Because the thing about life is, guys, that it's already very stressful. Our relationships, our friendships, our other bonds in our life are simply meant to make us feel relaxed. अगर वही रिलेशंस आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है उन चीजों को अपनी लाइफ में रखने का. इस साल ना इन सब चीजों को छोड़ दो, क्योंकि गाइस वन साइडेड एफर्ट से कभी कोई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप लास्ट नहीं करता. और सिर्फ आप ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हो क्या? वो भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वाइस वर्सा. सो व्हाई आर यू द वन हु इज ऑलवेज कॉलिंग? अगर वो भी आपको ट्रूली वैल्यू करते हैं, अगर वो भी आपको ट्रूली मिस करते हैं, तो वो भी तो कोशिश करेंगे ही ना टू गेट इन टच विद यू. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, दैट्स द एंटायर रिस्पॉन्स यू नीड. अगर वो कोशिश ही नहीं कर रहे, अगर वो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे आपके पास आने का, तो शायद यही आपका आंसर है.
maybe it's going to be a very tough fact to accept, but एक बार ना guys you get rid of these people in your life, you will actually make space for other people in your life, for those newer people in your life who will actually give you the kind of friendship and relationships you want. तो शायद आपको अपनी लाइफ में इस भीड़ को कम करने की जरूरत है, क्योंकि बेटर लोग आना तो चाहते हैं पर जगह ही नहीं है आने के लिए. Last thing, guys, that you need to leave behind in 2025 is that stop comparing yourself to others. I think I've spoken about this so many times on my channel and on Instagram as well, that कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके हो, इन लोगों की पोस्ट देखते हो, ये मत फील करो कि वाह यार इन्होंने तो इतना कुछ कर लिया, इनके पास तो इतना कुछ है, उसी कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रगल्स और चैलेंजेस इन सोशल मीडिया. लोग सिर्फ वही पोस्ट करते हैं जो उनकी लाइफ के हाईलाइट्स होते हैं. आई एम श्योर यू डू द सेम. बिकॉज नॉर्मली इफ यू आर फेलिंग एट लाइफ और इफ यू गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग पीरियड, आई एम श्योर आपको ये नहीं लगता ओ मैं फोन उठा के अपने आप को रोते हुए रिकॉर्ड करके इसकी स्टोरी डालता हूँ. कोई क्यों ही करेगा ना. तो ये बात रियलाइज करो. पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है रियलाइज करना गाइस, दैट आपको नहीं पता उस इंसान की स्ट्रगल्स क्या है, उनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या थी, हाउ मच दे हैव गॉन थ्रू टू फाइनली गेट टू वेयर दे आर टुडे. सो प्लीज डोंट कंपेयर योर जर्नी, योर लाइफ विद समवन एल्स. एंड गाइज यू नो, आपकी लाइफ का मंत्र ये नहीं होना चाहिए दैट ओ आई वांट टू बिकम बेटर देन दिस पर्सन और आई वांट टू बिकम लाइक दैट पर्सन. नो, योर मंत्र शुड बी दैट आई वांट टू बिकम बेटर देन हु आई वाज yesterday. You need to focus on becoming a better version of yourself, not a duplicate version of someone else. And with that, we come to the end of today's video. ये वीडियो छोटू सा था क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लो, इसलिए मैंने ज्यादा लंबा नहीं रखा था कि टू द पॉइंट आपको समझ आ जाए कि ये चीजें करना कितना इंपॉर्टेंट है. सो एज वी आर हेडिंग इनटू द न्यू ईयर सुपर सून, जस्ट रिमेंबर दैट you don't have to become a completely new person. You just have to become a lighter person, because you don't need to carry unnecessary weights, burdens and expectations of the past with you. You need to get in touch more with yourself. वो चीजें करो that help you actually truly build your character and make you a better person. जाने से पहले please don't forget to subscribe to my channel. Also follow me on both my accounts on Instagram, and also comments में मुझे जरूर बताना that what is the one thing that you're going to leave behind this year and not taking it आगे. और गाइस ये बात हमेशा याद रखना, लाइफ में जो एक्चुअली हमें मिलना होता है ना, वो मिलकर ही रहता है. तो टेंशन मत लो, ओ बटा व्हाट इज को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि व्हाट इज मेंट फॉर यू एंड ऑल्सो हु इज मेंट फॉर यू विल फाइंड यू, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इट माइट सीम टू यू राइट नाउ.